students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is more about MS Excel 2010. In this chapter we are going to study about some extra things about how Excel 2010, that is, first we are going to study about how to start MS Excel, then components of what are the components of MS Excel window, then worksheet and workbook, how to enter data in a worksheet, how to insert a worksheet, how to delete a worksheet, how to rename a worksheet, how to select selection in a, how to do selection in a worksheet, how to edit a worksheet, and undo and redo commands, inserting cells, columns, and rows. Delete, how to delete cells, rows, and columns, how to resize rows and columns, and the last one is saving our workbook. So let's begin. Microsoft Excel 2010 is an application software and component of Microsoft Office Suite. ये application software component है Microsoft Office Suite का. So ये help करता है use करने में, store, organize and manipulate करने में data को. So it organize data in the form of rows and column. ये organize करता है form, किस form में rows और columns की form में आपके data को. Features क्या क्या Excel के? Following are some features of Excel 2016. It provides formula for performing simple and complex calculation. ये formula provide करता है perform करने के लिए simple और complex calculations को. It helps to search data quickly. help करता है search करने में data को quickly and replace करने में instantly. Data can be viewed in graphical form. data को view कर सकते हो graphical form में, charts में. It also help us to compare data effectively. हमें help करता है data को effectively कंपेयर करने में. इट ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग, ये बहुत सारी फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है इम्प्रूव करने के लिए अपीयरेंस ऑफ डेटा. एक्सेल was launched in 1985. 1985 में एक्सेल लॉन्च हुआ था. एंड एक्सक्लूसिव contract with Apple. Apple's exclusive contract है. So all Mac version of Excel was included. खाली Mac version of Excel include हुआ था for first 2 years तक. Now starting MS Excel. कैसे स्टार्ट करते हैं MS Excel को? तो स्टार्ट MS Excel फर्स्ट आपको क्लिक करना है एंड टाइप करना है आपको Microsoft Excel 2010 टाइप करना है. इसमें टाइप है सर्च बॉक्स में एंड क्लिक कर देना Microsoft Excel 2010 पे. नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या होता है MS Excel विंडो के? The following are the components of MS Excel Windows cell. So it is the intersection of columns and rows. ये क्या होता है? Intersection होता है columns का, rows का. In any spreadsheet program such as Excel, it is displayed as a rectangular box. एक ऐसा display होता है एक rectangular box की तरह. एक्टिव सेल क्या होता है? जिस जब ये जो एक आउटलाइन क्रिएट हो जाती है, बॉर्डर सराउंडेड हो जाता है, जिस सेल पे आप क्लिक करते हो, जिस करंट सेल पे आप वर्क कर रहे हो, दैट इज नोन एज द एक्टिव सेल. कॉलम हेडिंग, इट इज अ टॉप बॉर्डर ऑफ अ वर्कशीट. ये टॉप बॉर्डर ऑफ अ वर्कशीट होता है कॉलम हेडिंग. it रिप्रेजेंट होता है ABC से और फॉर्मूला विच इज प्रेजेंट इन द एक्टिव सेल. सेल बार, सेल एड्रेस, ये कॉम्बिनेशन होता है कॉलम लेटर्स का, रो नंबर का, सेल का, सच एज E5. नेम बॉक्स, ये लोकेट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार में. ये डिस्प्ले करता है सेल एड्रेस ऑफ करंटली सिलेक्टेड सेल. रो हेडिंग refers to the number of numbers which are marked. जो किस तरह करता है? जो नंबर मार्क्ड है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ वर्कशीट, जैसे आपको 1 2 3 4 5 हो गया. शीट टैब, इसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट टैब कहता है. इंडिकेट करता है करंट वर्कशीट. ये लोकेटेड होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडो में. So formula bar, this is the formula bar, this is your ribbon area, this is the title bar, this is your column headings, this is your name box, this is your active cell जिस पर आप currently work कर रहे हो. This is your row headings, this is your tab scrolling button, this is your sheet tab, sheet 1, sheet 2, this is your status bar, the status show का, this is scroll bar. Now let's talk about status bar. Status bar appears at the bottom of the Microsoft Excel window. Bottom में आता है Microsoft Excel window के. ये it keeps you informed. ये inform करता है आपको about the current mode of Excel. Scroll bar appears on the side or bottom of the Excel window. Side में या bottom of the Excel window में appear होता है. Help करता है move करने में worksheet को. Tab scrolling buttons are located at the bottom. Tab scrolling button bottom में located होते हैं जो enable करते हैं scroll करने में through a spreadsheet. Now worksheet and workbook. So in Excel we have worksheets and workbook. Excel में हमारे पास worksheet भी होती है, workbooks भी होती है. Worksheet क्या होता है? Single spreadsheet consisting of grids of rows and columns which intersects to form cell. वो intersect करता है cell को form करने में. single sheet होती है. These cells are the places where we enter our data. ये cell वो places होते हैं जहाँ पे हम अपने data को enter करते हैं. An Excel file or document is called a workbook. एक Excel file और document उसको हम workbook कहते हैं.
A workbook can contain a number of worksheets. वर्कबुक में नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती है जस्ट एज अ नोटबुक कंटेन मैनी पेजेस. जैसे एक वर्कबुक में क्या होता है, बहुत सारी वर्कशीट्स होती है. जैसे बुक नोटबुक में क्या होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, सेम एज. इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल. इसमें इंफॉर्मेशन होती है फाइल से रिलेटेड, लाइक द फॉर्मूला, मैक्रोस, ऑथर एंड मच मोर. An Excel workbook or file is saved with the extension .xlsx. So the sheet is in workbook. The sheet in a workbook are displayed as tabs. जो sheet होती है workbook में कैसे डिस्प्ले होती है, tabs के फॉर्म में डिस्प्ले होती है बॉटम ऑफ वर्कबुक में, and can be toggled easily. Entering data in a worksheet. डेटा को कैसे एंटर करते हैं वर्कशीट में. In Excel you can enter 4 types of data. 4 टाइप के डेटा को आप एंटर कर सकते हो. फर्स्ट डेट एंड टाइम, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला. इन टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हो. डेट एंड टाइम. द डेटा कंसिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम. इसमें डेटा होता है डेट एंड टाइम से रिलेटेड. बाय डिफॉल्ट दीज वैल्यूज आर राइट अलाइंड. ये राइट अलाइंड होती है. नंबर होता है, द डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर 0 से 9 तक के होता है. बाय डिफॉल्ट दीज वैल्यूज आर ऑल्सो राइट अलाइंड. टेक्स्ट होता है, द डेटा कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स. लेटर्स होता है, नंबर्स होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होता है लाइक सिंबल्स हो गए आपके, एंड ब्लैंक स्पेसेस. बाय डिफॉल्ट दीज वैल्यूज आर लेफ्ट अलाइंड. लेफ्ट अलाइंड होती है. सो फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, ऑपरेटर्स का एंड सेलिब्रेशंस का. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. द वैल्यू स्टोर्ड इन द सेल और रेंज ऑफ सेल्स. नाउ टू एंटर डेटा इन सेल्स, गो टू द सेल. आपको सेल पे जाना है. वे यू वांट टू एंटर योर टेक्स्ट, जहाँ पे आप एंटर करना चाहते हैं टेक्स्ट, एंड क्लिक करना है उस पर. देन स्टार्ट करना है टाइपिंग. When you open a sheet, जब आप ओपन करते हो शीट को, सेल A1 इज एक्टिव. सेल A1 एक्टिव होता है डिफॉल्ट से. यू कैन टाइप डेटा. आप यहाँ पे डेटा टाइप कर सकते हो. आफ्टर एंटरिंग डेटा क्लिक करना है आपको एंटर पे, एंड यू कैन सिंपली मूव योर पॉइंटर. आप सिंपली मूव कर सकते हो अपने पॉइंटर को अपने सेल पे. वाइल टाइपिंग डेटा आप नोटिस करोगे कैंसिल एट एंटर बटन अपीयर होगा बिफोर द फॉर्मूला बार. देन क्लिक करना है आपको एंटर बटन पे टू एक्सेप्ट द डेटा, और क्लिक करना है आपको कैंसिल बटन पर रिजेक्ट करनी है अपने डेटा जो आपने टाइप किया है. वी यूज एरो कीज. हम एरो कीज को यूज करते हैं मूव करने के लिए इनसाइड अ वर्कशीट. टू मूव पेजेस वी यूज पेज अप एंड पेज डाउन कीज. हम पेज अप और पेज डाउन कीज को यूज करते हैं इफ वी वांट टू मूव पॉइंटर. अगर हम पॉइंटर मूव करना है फर्स्ट सेल में टॉप मोस्ट रो में, इफ वी प्रेस कंट्रोल प्लस होम, हम कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते हैं. इफ वी वांट टू मूव टू द लास्ट सेल, अगर हमें लास्ट सेल में मूव करना है वर्कशीट के, we press control plus N. Inserting a worksheet. कैसे इंसर्ट करते हैं वर्कशीट को. there are 3 worksheets in a workbook by default. 3 वर्कशीट होते हैं डिफॉल्ट से वर्कबुक में. sheet 1, sheet 2 and sheet 3. so to insert a worksheet follow the given step. फर्स्ट आपको क्लिक करना है होम टैब पे. देन क्लिक करना है आपको इंसर्ट ऑप्शन पे, ड्रॉप डाउन एरो पे. देन क्लिक करना है इंसर्ट शीट ऑप्शन पे. प्रेस करनी है आपको शिफ्ट प्लस F11 की कॉम्बिनेशन. A new sheet will be inserted. क्लिक करना आपको इंसर्ट वर्कशीट बटन में, प्रेस करना आपको शीट टैब. एन एक्सेल वर्कशीट है 104857 रोज होते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट में, और 16384 कॉलम्स होते हैं. नाउ हाउ टू डिलीटिंग अ वर्कशीट. कैसे डिलीट करते हैं वर्कशीट को. टू डिलीट अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट आपको क्लिक करना है शीट पे, शीट टैब पे क्लिक करना है जिसको आपको डिलीट करना है. देन होम पे जाना है. होम पे जाने के बाद क्लिक करना है आपको डिलीट ऑप्शन पे. डिलीट बटन आएगा प्रेजेंट आपके सेल ग्रुप में. देन क्लिक करना है डिलीट शीट ऑप्शन पे. रीनेमिंग अ वर्कशीट. कैसे रीनेम करते हैं वर्कशीट को. टू रीनेम अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप. सेलेक्ट करना आपको शीट को, टू बी उस शीट को जो आपको रीनेम करनी है शीट टैब में. देन क्लिक करना है होम टैब पे. देन सेलेक्ट क्लिक करना है फॉर्मेट बटन पे जो प्रेजेंट है आपके सेल ग्रुप में. देन सेलेक्ट करना है रीनेम शीट को फ्रॉम ऑर्गेनाइज शीट बटन. और आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक भी कर सकते हो शीट नेम पे ऑन शीट टैब, एंड क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है अपना नेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो शीट नेम पे शीट टैब में, एंड टाइप करना है न्यू नेम. सिलेक्शन इन अ वर्कशीट. कैसे सिलेक्ट करते हैं वर्कशीट में. सिलेक्टिंग अ सेल. टू सेलेक्ट द सेल इन द वर्कशीट क्लिक करना है आपको डिजायर्ड सेल पे. द बॉर्डर अराउंड द सेल विल अपीयर. जो बॉर्डर होगा सेल के अराउंड वो अपीयर हो जाएगा. थिकर दिस सेल will now be the active cell. जो सेल होगा ये आपका एक्टिव सेल होगा. Selecting adjacent cells. To select adjacent cell for the given cell. क्लिक करना आपको upper most cell पे in the range. प्रेस करना है, ड्रैग करना माउस पॉइंटर को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ओवर मल्टीपल सेल. द रेंज ऑफ सेल विल बी सेलेक्टेड. द रेंज ऑफ सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा. या फिर आप क्लिक कर सकते हो फर्स्ट सेल पे व्हाइल कीपिंग द शिफ्ट की. प्रेस शिफ्ट की को प्रेस करके आप क्लिक कर सकते हो लास्ट सेल पे. लास्ट सेल रेंज पे वो रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी. You can also select cells by keeping shift key press and using arrow keys. shift key को प्रेस करके और arrow keys को यूज करके भी आप select कर सकते हो.
selecting non-adjacent cell. Non-adjacent cells को कैसे select करते हैं? To select non-adjacent cell, follow the given steps. Select करना आपको first cell in the range. Then press करना है control key को and click करना है other cell पे that are to be selected. After that selecting, now let's talk about selecting an entire column or row. पूरा entire column या फिर row को कैसे select करते हैं? To select an entire column or row, follow the given step. Click करना आपको column header पे और row number पे जिसको आपको to select a single column or row respectively. For example, click on header of column number B. If you want to select column B, selecting entire worksheet, पूरी की पूरी worksheet को कैसे select करता है? To select an entire worksheet, press करना आपको Ctrl+A या फिर आप click कर सकते हो select all button present जो है आपके left corner of worksheet पे और first cell. Do you know? Ctrl+A is a window shortcut. ये window shortcut है select करने के लिए entire text matter को and applicable है to the other softwares too. Editing a worksheet. Pointers in Excel. The mouse pointer changes its shape. वो shape change करता है depend होता है जो उसके different things पे. Plus sign जो होता है ये use होता है select करने में cells को. ये diagonal होता है left diagonal और right diagonal. So the I being shape जो होता है ये इस माउस पॉइंटर इंडिकेट करता है दैट यू में टाइप इन दिस एरिया कि आप कर्सर शिफ्ट जो होता है ये आपकी इस एरिया में टाइप कर सकते हो. जो एरोज होते हैं डाउनवर्ड और राइटवर्ड दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट द होल रो. ये सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है होल रो कॉलम रिस्पेक्टिवली मैम पोजीशन ऑन द रो नंबर और कॉलम लेटर. So this sign is it is dragged to adjust the width of the column को adjust करने के लिए. This sign is dragged to adjust the height of the rows को adjust करने के लिए. Changing the content of a cell. Content कैसे change करते हैं cell का? To change the content of a cell, follow the given steps. Double click on desired cell. Double click करना है आपको desired cell पे to change its content. उसके content को change करने के लिए the insertion point will blink in the cell. जो insertion point होगा वो blink करेगा cell. Place the pointer at the desired place. Pointer को place करना है आपको desired place पे change करना है content accordingly. Then press करना है आपको enter P को after editing content. Moving the contents of a cell. Content of a cell को कैसे move करता है? Cut command. Cut command is used to move text from one cell to another. One cell से another पे move करने के use होते हैं in the same worksheet or in another worksheet. To use cut command, follow the given steps. Select करना है आपको desired cell और range of cells को. Then click करना है home tab पे. Click करना है cut option पे जो present आपके clipboard group पे. Then select करना है cell in which you want to paste the content जहाँ पे आपको content को paste करना है. Then click करना है आपको paste option पे जो present आपके clipboard group में है. Copy command is used when you want to duplicate the cell. जब आप duplicate करना चाहते हो cell content को in the same worksheet or in the another worksheet. To use the copy command, follow the given step. Select करना आपको cell और range of cell जो आपको copy करना है. Click करना आपको home tab पे. Click करना है copy पे option पे clipboard group. Select करना आपको cell where you want to copy the content जहाँ पे आप copy करना चाहते हो content. Then click करना आपको paste पे in the clipboard group. Paste command. We use this command to get display of content. हम इस command को use करते हैं display of content के लिए which we have cut or copied. Paste special offer many more paste option. ये बहुत सारे paste options को offer करता है. We can paste comment only borders. हम paste कर सकते हैं only borders, numbers, etc. ये different होता है आपके paste command से क्योंकि offer करता है formatting option for item being pasted. ये remove करता है formatting from the copied text. Move or copying data by dragging drop method. So for moving a selected cell or cell ring, drag करना है आपको whatever around and drop it करना है आपको raising the mouse to move the desired location. For copying a selected cell, copy करने के लिए select cell को आपको और cell range को आपको control key को press करना है and drag करना है select cell range को and from the border and drop it to the raising mouse button to copy desired location. Drop करना है वहाँ पे जहाँ पे desired location पे वो पहुँच जाए. Undo and redo commands. Undo and redo commands are present in the quick access toolbar. एक कहाँ पे present होते हैं आपके quick access toolbar पे present होते हैं. Undo command किस लिए use होता है? Cancel करने के लिए last step को you have performed in the worksheet. Redo command use होता है repeat करने के लिए last step को जो आपने perform किया है worksheet में. Do you know the shortcut key cut, copy, paste, undo and redo commands? Ctrl+L, Ctrl+C, V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z and Ctrl+Y respectively. ये आपकी cut, copy, paste और undo and redo की commands हैं. So this is your undo command, this is your redo command.
ना इंसर्टिंग सेल्स एंड कॉलम्स, कॉलम्स और सेल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं. टू इंसर्ट सेल्स, रोज एंड कॉलम्स वर्कशीट, इन अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है सेल. सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है होम टैब पे. देन क्लिक करना है आपको इंसर्ट बटन पे. इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद द सेल ग्रुप लिस्ट विल अपीयर हैविंग 4 सब ऑप्शन. एक लिस्ट अपीयर होगी जिसमें और 4 ऑप्शन होंगे. इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट. सेलेक्ट ईदर ऑफ दीज ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. डिलीटिंग सेल, रोज एंड कॉलम कैसे करते हैं. टू डिलीट द सेल, रोज और कॉलम सेलेक्ट करना है आपको सेल. देन मूव टैब पे जाना है, क्लिक करना है डिलीट बटन जो प्रेजेंट आपके सेल ग्रुप में. अ लिस्ट विल अपीयर, एक लिस्ट अपीयर होगी बहुत सारे ऑप्शंस के साथ. इसमें डिलीट सेल, डिलीट शीट और डिलीट शीट्स कॉलम, डिलीट शीट का ऑप्शन होगा. दीज 4 ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे. तो क्लिक करना है आपको डिलीट ऑप्शन पे. इट विल डिस्प्ले डिलीट डायलॉग बॉक्स. डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाए. ओके, सामने सिलेक्ट करना आपको डिजायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक कर देना है ओके पे. नाउ रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, कैसे रीसाइज करते हैं रोज और कॉलम्स को. यू कैन चेंज द हाइट ऑफ अ रो एंड विड्थ ऑफ अ कॉलम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा. रीसाइजिंग अ रो, टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो फॉलो द गिवन स्टेप. आपको सिलेक्ट करना है एनी सेल इन डिजायर्ड रो whose height is to be changed, जिसकी हाइट आपको चेंज करनी है. क्लिक करना है आपको होम टैब पे. क्लिक करना है फॉर्मेट बटन पे. ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट आपके सेल रो में. देन सेलेक्ट करना है रो हाइट ऑप्शन. सेल साइज सेक्शन में रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. टाइप करना है आपको रिक्वायर्ड रो हाइट इन द बॉक्स. क्लिक करना है आपको ओके पे. द हाइट ऑफ द रो विल बी चेंज. जो हाइट होगी वो चेंज हो जाएगी. या फिर आप क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो माउस पॉइंटर को ऑन द एज ऑफ द रो हेडर इन द सेल. द पॉइंटर चेंज करेगा डबल हेडेड रो. ड्रैग करना है आपको पॉइंटर को एडजस्ट करने के लिए रो की हाइट को ड्रैग कर सकते हो. नाउ रीसाइजिंग अ कॉलम, रीसाइज कैसे करते हैं कॉलम को. टू चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट आपको क्लिक सेलेक्ट करना है सेल इन द रो कॉलम whose width is to change, इसकी विड्थ आपको चेंज करनी है. आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट कर जाना है, आपको जाना है होम टैब पे. देन क्लिक करना है फॉर्मेट बटन को. ड्रॉप डाउन एरो में से सेलेक्ट करना आपको कॉलम विड्थ को इन द सेल साइज. सेल साइज में सेलेक्ट करने के बाद एक कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. आपको टाइप करना है रिक्वायर्ड कॉलम विड्थ इन द बॉक्स. क्लिक करना है आपको ओके पे. द विड्थ ऑफ कॉलम विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली. सेविंग अ वर्कबुक, वर्कबुक को कैसे सेव करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव अ वर्कबुक फॉर फ्यूचर यूज. दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. क्लिक करना है आपको सेव एज पे इन फाइल टैब. 10 तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो नेम अपनी वर्कबुक का एंड क्लिक करना है आपको सेव बटन पे. द वर्कबुक विल बी सेव्ड. यू कैन ऑल्सो सेव योर वर्कबुक बाय प्रेसिंग S12 की. आप S12 की को प्रेस करके भी सेव कर सकते हो भी वर्कबुक को. ये डिस्प्ले करेगा सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक, या फिर आप क्लिक कर सकते हो सेव एज पे एंड क्विक एक्सेस टूल बार में सेव एज पे भी क्लिक करके भी आप अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हो. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.